This program is sponsored by ہر زمین کے لیے سرسبز کھادیں زمین کی جان فصل کی شان and Vintage Stories now in stores. ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے وہ بھی صرف 10 روپے میں. سرف ایکسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ پاکستان. تمام دیکھنے والوں کو آج کا دن بہت بہت مبارک اور اللہ کا شکر ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے ہوں اور یقیناً تمام لوگ اپنے گھروں میں مجھے دیکھ رہے ہیں. صبح صبح کا وقت ہے جو ٹھنڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے لیکن صبح جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ سورج کی کرنیں خوبصورت سی ہمارے اوپر گرتی ہے تو ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے اور یقیناً وہ اتنا مزہ آتا ہے. اور اگر آپ کا روم اس طرح کا ہو کہ ونڈو کھلے اور فوراً سے سورج کی کرنیں آپ کے اوپر آپ کے مطلب آپ کے چہرے پہ آ کے گرے تو کیا ہی مزے کا سما ہوگا. ویسے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی کہوں گی کہ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیں. کوشش کریں کہ کچھ اس طرح کا نہ کھائیں جس سے آپ کے گلے پہ کوئی اثر ہو یا آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو فلو کا انفیکشن ہو. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنے سے آپ بہت زیادہ چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ آئی تھیں اور انہوں نے بڑی اچھی انسٹرکشنز دی تھی. آج بھی میں نے سوچا کہ موسم اس طرح کا ہے جس میں ہم بہت زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں فوراً سے بستر سے اٹھتے ہیں اور اپنی بے دہانی میں فوراً سے باہر بھاگتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی آپ بستر سے اٹھیں آرام سے اٹھیں. ایک دم اپنے اوپر سے بستر لحاف ہے کمبل ہے کچھ بھی ہے تو اپنے اوپر سے کمبل کو آرام سے اتاریں. ایک دم ایسے ہی نہیں کہ ہوا آپ کے اوپر اثر کرے اور آپ کو چیسٹ انفیکشن یا آپ کو ہوا لگ جائے آپ کے جو شولڈر مسکولر پرابلمس جو ہیں وہ آپ کو اسٹارٹ ہو جائے. تو کوشش یہ کریں کہ بستر سے نکلتے ہوئے شال اوڑھ لیں اور یا ٹوپی پہن لیں یا ساکس پہن لیں تاکہ آپ کی باڈی کو ہوا نہ لگے اور آپ پروٹیکٹ رہ سکیں. جی ناشتہ آپ لوگ کر چکے ہوں گے اور اگر نہیں کیا تو ابھی سے کریں اور کرتے ہوئے میرا خیال جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خوشبوئیں مجھے یہاں تک آتی رہتی ہیں. اور کھانے پینے کے حوالے سے میری ٹیم یہ کہتی ہے کہ صبح صبح میں پروگرام کی ٹائمنگ میں کھانے کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کرتی ہوں. تو یہ خواتین جو ہیں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں اور یقیناً آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے آج کا جو پروگرام ہے وہ وومن شو ہے. اور پہلے 1 مین شو ہوتا تھا یا 1 وومن شو ہوتا تھا تو آج الحمدللہ ایک دفعہ پھر سے 3 گرلس نو ڈونٹ کال اس وومن. ہمیں عورت مت کہیے کہ بھائی ہم لڑکیاں ہیں ابھی بھی. اور آج پھر ایک دفعہ جو پیاری سی لڑکیاں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بہت پیاری پیاری گفتگو ہوگی. اس کے حوالے سے بھی ضرور بات ہوگی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ خوشبو کے حوالے سے دیکھیں ابھی ایک کیمرہ مین مجھے گھوری ڈال رہے ہیں کیونکہ میں پھر کھانے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سردیوں میں کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور سردیوں میں کھایا بہت زیادہ جاتا ہے. تو کوشش کریں اچھا پکائیں اچھا کھائیں ستھرا کھائیں اور کوشش کریں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جو واقعی حقدار ہیں جو آپ کی ایک نظر کے مستحق ہے. جی پروگرام افسردہ بالکل نہیں ہے. آج بہت ہی ٹیکنیکل کوشچن ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ایشو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹا ہو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں بیٹے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے صرف بیٹی لینے کے چکروں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 6 7 اور بہت زیادہ تعداد ہو جاتی ہے. اللہ کی دین ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو چاہے جیسے چاہے وہ نوازتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ہاتھ میں بھی دیا ہے کہ اگر ہم میجورٹی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ اولاد بہت زیادہ ہے تو اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ اسی طرح کے ٹیکنیکل کوسچنز ہیں جو آج انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں یہاں پر موجود جن سے میں بہت سارے سوالات کروں گی. لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو کسی بھی فقہ میں یا کسی بھی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہم مطلب اوائڈ کریں گے. کوشش یہ کریں گے کہ اس کو نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو جس سے کوئی پرابلم ہو. جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج بہت ہی پیاری لڑکی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. میں عورت بالکل نہیں کہوں گی کیونکہ تمام لڑکیاں جو ہوتی ہیں تمام فیمیلز وومن بھی نہیں کہوں گی جو تمام فیمیلز ہیں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. بھائی جوان ہے عمر میں کیا ہوتا ہے بھائی آپ کو ویسے جوان نظر آنا چاہیے. آج سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری فلم انڈسٹری کی بندی ہیں. ان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ
बता दूं कि वो खुद बताएंगी। वह जी थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं कि बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत ज्यादा नाम है और इसके अलावा बहुत सारे ड्रामास कर चुके हैं, थिएटर में ये काम करती है। थिएटर के हवाले से पूछेंगे इनसे। तो मधु हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मधु आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी आप ठीक है आप? कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी नजर आ रहा है हमें, बिल्कुल ठीक है। ठंड है जी बहुत सर्दी है, सुबह सुबह कॉफी पिए उससे तो थोड़ी तसल्ली होगी कि सर्दी मजा है, है। मजा है, मजा है, पता सर्दी चला। का कुछ अपना ही मजा है। अच्छा मुझे बताएं जरा, सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है कि नहीं? लगती तो है लेकिन कंट्रोल में रखना पड़ता है हाँ हमें। ज़ाहिर है जी, आप डाइट कॉन्शियस है, आपको अपने आप को मेंटेन जो है वो रखना पड़ता है। वैसे जी आज की सेकंड गेस्ट के बारे में भी उनको अपने शो में वो मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि अकेली दो लड़कियां जो है दो सहेलियां बातें करती हैं, तीसरी को हम शामिल ना करें। तो मैं आपको बताती चलूं जी, डॉक्टर साजिदा शाह नवाज हमारे साथ मौजूद है, इनको मैं खुशामदीद कहूंगी। चीफ डायरेक्टर हैं जी एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टार आईसेक, और इसके अलावा सीईओ हैं सकीना इंटरनेशनल फर्टिलिटी हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहती हैं। मैंने कार्ड से देखे इसलिए आपका नाम पड़ा क्योंकि बाज़ औक़ात हम अदायगी में कोई लफ्ज जो मिस है वो हो जाता है, तो मैं आपका पूरा नेम, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको मिस नहीं करना चाहती थी। आपको बहुत ज्यादा खुशामदीद। डॉक्टर साहिबा कितनी ठंड है? मेरे ख्याल में कि अभी सही ठंड नहीं है। अभी सही ठंड नहीं। अच्छा खुदा इश्क खैर होता है आगे आगे देखिए होता है क्या? वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नाज़रीन, यकीनन आप इस चीज को एंजॉय करेंगे। तो आज लग रहा है ना भाई, 3 लड़कियां बैठी, 3 मोहल्ले की सहेलियां नहीं होती जो मतलब सुबह सुबह कहती है कि ये भी होगा, दरवाजे में खड़े होकर बातें। हाँ अच्छा मजे की बात, दरवाजे से मुझे एक बात याद है कि आपने सुना होगा, ये बल्कि देखा भी होगा कि अंदर बैठ के डाइनिंग रूम में या आपके नीचे बैठ के 100 बातें कर ले, लेकिन गेट पे खड़े होकर जो 5, 6, 10 बातें होती है ना वो ज्यादा मजेदार होती है। शायद वो पूरा घंटा वो बातें नहीं होती, ऐसा होता है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आप लोग ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सर्दी को खूब इंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल, जितनी थोड़ी बहुत आ रही है। तो डॉक्टर साहब भूख सर्दियों में ज्यादा लगती है या नहीं? मेरा ख्याल है कि हमें ये हमारी मिसकंसेप्शंस हैं कि बहुत ज्यादा सर्दियों में लगती है, गर्मी में। आप जितना काम करते हैं ना, जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं उतनी आपको भूख लगती है। सर्दियों में आप बिस्तर में घुस जाएंगे तो आपको भूख आपको कहाँ से लगेगी? अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे आप भी कह रही थी कि एक नाश्ते के बाद दूसरा नाश्ता भी होना चाहिए, 10 बजे आपको दूसरा नाश्ता भी होना चाहिए। लगता है मुझे लगता है कि माएँ जो है ना उनकी तो पता नहीं कितनी बार खाना हो जाता है। सपोज अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल गए हैं तो उनका जो बच्चा कुछ होता है, माएँ जो कहती है अच्छा जाया करने से बेहतर मैं खुद खा लूं। एक बार तब खाया, फिर एक बार अगर हस्बैंड 10 बजे उठे हैं या उन्होंने ऑफिस जाना है तो एक बार अम्माएं मतलब जो वो उनको बना के देती हैं साथ साथ उनके साथ खाती हूँ। और तीसरी बार में जब वो होता है जो मतलब जो दोपहर का खाना है वो आधा टेस्ट जो पकाते पकाते आधा जो है हमारी खवातीन हर मामले में खुद को फील बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम ये देखें ना, फिर हमें इसीलिए बहुत खुले कपड़ों वाला फैशन भी अपनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। और फिर बाद हम कहते हैं अभी तो मैं स्मार्ट हूँ, कौन सी बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, अभी ज्यादा नहीं हुई, अभी ऐसे ही है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए। मुझे आज ये कि इंशाल्लाह हम इंडस्ट्री के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और आज जो आप मेन इशू लेकर आई हैं बहुत अच्छा इशू है। मैं चाहती हूँ लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। और इसके अलावा जो है बीइंग या बीइंग अ सिटीजन, मैं आपसे बहुत सारे सवाल मुझे करने हैं क्योंकि हम जो यहाँ पे बैठे लोग होते हैं वो सारे उनके माउथ पीस हैं। तो बीइंग अ माउथ पीस मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूंगी। थोड़ा सा मैं कहती हूँ जरा आप इंडस्ट्री के हवाले से बात करें। यहाँ पर मधु हमारे साथ है, तो कैसा फील हो रहा है? पहले आप बताएं जरा कैसा फील हो रहा है वो साथ बैठे हैं? हाँ मधु के साथ कैसा फील है? मुझे मैं मधु ऐसा नहीं लग रहा कि डॉक्टरी में कोई जो म्यूजिक ये तार शार बज जाए। मैं समझती हूँ कि डॉक्टरी में मिर्च मसाला जो है वो साथ जरूर होना चाहिए। बहुत ज्यादा हमारा टॉपिक भी इस तरह का है, खूबसूरती वाला टॉपिक उसी बिल्कुल जी इसी तरह का है। तो मधु आप क्या मतलब जब आपने आगाज किया और आज की इंडस्ट्री को क्या देखती हो? दोनों तब ठीक था या अब ठीक है? मैंने आगाज तो पीटीवी से मैंने किया था। पहला सीरियल था मेरा पीटीवी का। उसके बस आगे के जब मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो इंडस्ट्री उस टाइम बिल्कुल ही फारिग हुई थी। तो क्योंकि पहले के एक्टर्स जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज करते थे डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज से काम करते थे। लेकिन आजकल के आर्टिस्ट भी वैसे ही हैं। हाँ। तो बस इंडस्ट्री को मैंने सौ देखा है। जैसा मतलब जब आप आई तो जवाल की तरफ रवा दवा थी, लेकिन
मेरे ख्याल से एक चेंज हम इंडस्ट्री में दोबारा से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी मूवीज जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। अभी भी हम देखते थे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल मूवीज जो हैं वो दोबारा से उनका रिवाइवल हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि वो टाइम जो बहुत अच्छा था फिर दरमियान में आकर मिस हो गया, अब दोबारा से वो सारा जी जी बिल्कुल दोबारा से शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह 2017 में फिर से वही टाइम आ जाएगा इंडस्ट्री पर। अच्छा, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? ड्रामा में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, थिएटर में काम करने का बहुत अच्छा, या फिल्म में? फिल्म में जी मुझे तो फिल्म में ज्यादा। अच्छा, उर्दू में की हैं, पंजाबी में की हैं? जी मैंने उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो सब जबानों में की हैं। सारी की हैं जी सारी की। अभी भी मेरी तकरीबन 7 से 8 मूवीज जो ऑन सेट हैं जिसमें पश्तो भी है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है। अच्छा, मैं आपके साथ पठाना वाला एक्सपीरियंस जरूर पूछूंगी कि भाई उनकी पश्तो कैसे आपको समझ आती थी। हमारे साथ डॉक्टर साहब है जी। डॉक्टर साहबा, मैं चाहती हूँ कि आज के जो अहम इशू पे हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि मस्तियां तो हमारी चलती रहेंगी, ज़ाहिर है 3 सहेलियां बैठी हैं तो आज बहुत सारी गुफ्तगू होगी, लेकिन बेसिकली जो आज बैठने का हमारा मकसद है वो उस हवाले से हमें बताएं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है और आपने क्यों इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहा। सबसे पहले तो सैरिश में आपके जितने इस वक्त पंजाब टीवी का मॉर्निंग शो देख रहे हैं ना, उनको एक खुशखबरी देना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ ना, मैं वहाँ ये गुड न्यूज और अपने वोचर्स और गिफ्ट पैक्स लेकर जाती हूँ। और वो क्या है कि आपके आज के शो से के रेफरेंस से जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज वो इसको नोट कर लें कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं इस वक्त, वो अगर हमें आपके उस पे कॉल करेंगे तो पहले 5 कॉलर्स को हम फ्री टेस्ट ट्यूब बेबी का उन्हें एक्सपीरियंस देंगे विदाउट एनी कॉस्ट, जो कि 4 लाख तक, 3.5 लाख तक जिसकी कॉस्ट है। ये हमारी पॉलिसी है जो कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है। और दूसरा जो हम जेंडर सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट 5 कॉलर्स को हम 5 कॉलर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जेंडर सिलेक्शन का, जो आपके इस वक्त प्रोग्राम को सुनते सुनते आपके कॉल करेंगे ना। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छी। तो ये हमारा ये गिफ्ट है उन लोगों के लिए, और इंशाल्लाह बहुत सारी नई बातें बताएंगे। इस वक्त टीवी के नजदीक जितनी खवातीन ऐसी हैं वो प्लीज सुन लें कि जिनके पास प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं और वो एक बेटे की तलाश में है, या उनके पास प्यारे प्यारे बेटे हैं और वो चाहती हैं कि हमारी एक प्यारी सी बेटी हो जाए, तो वो लोग जरा करीब आ जाएं, थोड़ी देर के लिए काम छोड़ लें। मेरे पास उनको बताने के लिए बहुत कुछ है कि मेडिकल साइंस ने, अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया। देखें, मुझे कई, आप कह रहे थे ना अभी सैरिश आप बात कर रही थी मौलवियों की, कि जी हम किसी की दिल आजारी ना हो। मैं समझती हूँ कि मजहब में तो किसी इंसान का राइट नहीं कि वो किसी दूसरे की दिल आजारी करे। और खास तौर पे डॉक्टर से बड़ा मौलवी कोई नहीं होता, क्योंकि वो तमाम मौलवियों की रूट तक जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे जब भी कोई सवाल पूछे ना कि डॉक्टर साहब ये इल्म जायज नहीं है, मैं उन्हें कहती हूँ मेरी बात सुने, इल्म हमेशा अल्लाह के हुक्म से जमीन पे पहुंचता है। अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो इल्म नहीं आता। क्या आपने अमेरिका को सुना, यूरोप को सुना ये कहते हुए कि जी हमारा बंदा मर गया, आ जाए, आप माँ बाप का बंदा जिंदा कर देंगे? कोई नहीं कहता। इल्म आता है ना तो उसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि उसका इल्म जो है वो दुनिया के लोगों तक जाए। माशरे में आपने बिगाड़ देखी, इस वक्त हमारा पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजर रहा है कि हम मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं। अभी मधु बता रही थी इंडस्ट्री फॉल, मैं समझती हूँ ये किसी खास सोसाइटी में किसी खास तबके का फॉल नहीं है, हमारी पूरी सोसाइटी का फॉल है। वो क्यों आ रहा है, उसकी रूट कॉज को हम कभी समझें तो सही। देखें, मैं आपको आज एक बात बताऊंगी, मुझसे जितने लोग सुन रहे हैं, क्या आप लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि हमारा जो डाउनफॉल आ रहा है वो क्यों है? इक्तिसादी इकोनॉमी तौर पे हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं कि पॉपुलेशन फट रही है। पॉपुलेशन जो हमारे खाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाला कम है। कमाने वाला कम है। अब अगर मेरी बात सुने, अगर आपकी फैमिली में आपने 2 बेटे पैदा करने हैं, जोड़ी मिलाते हो, एक बेटा गलती से पहले पैदा हो गया, दूसरा बेटा तो आपने जोड़ी मिलानी है, फिर उसकी जोड़ी मिलाते मिलाते 8 बेटियां आ गई। मुझे बताएं उन 8 बच्चियों का कौन पुरसाने हाल है? गरीब घर की बेटियां होंगी, वो क्या है बेचारी, ज्यादा से ज्यादा बहुत हाई लेवल पे है, डॉक्टर बन गई। गरीब है तो वो टीचर बन गई। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर वो नहीं है, कुछ नहीं कर सकी, तो चूंकि वो गरीब घर से है
तो उसको क्या कहा जाएगा कि तुम बिल्कुल घर में नकारा होकर बिल्कुल जी, मैं चाहूंगी कि हम अपनी बात यहीं से कंटिन्यू करें क्योंकि प्रोग्राम में ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तसलसल ना टूटे क्योंकि अगली बात बहुत ज्यादा गौर से सुनने वाली थी। मैं चाहती हूँ यहीं पे ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग विद पंजाब। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब आप दोबारा से वहीं से अपनी बात शुरू करें क्योंकि हम देखते हैं, वाकई मेरा भी ये सवाल है कि एक पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, शायद आपने भी मधु देखा होगा कि अगर बेटियां हैं, मतलब 2 बेटियां हैं तो कोशिश होगी कि 2 बेटे भी हो जाए, तो एक 4 का जो पेयर है वो लाजिम है। और अगर आपके पास एक बेटा है तो कोशिश ये होती है कि दूसरा बेटा भी हो जाए, और उसके चक्कर में 3 बेटियां हो गई हैं, 4 बेटियां हो गई हैं, तो उस चक्कर में मीन्स आप ये नहीं देखते कि भाई एक को पूरा करते करते आप बाकी की परवरिश किस तरह करोगे, चाहे आपके हालात जो हैं इतनी इजाजत देते हैं या नहीं देते ना। एक्चुअली होता ये है कि मैं अभी आपको बता रही थी कि उन बेटियों का जो गरीब घरों की बच्चियां हैं उनका क्या होगा। हर कोई डॉक्टर या टीचर नहीं बन सकता। अच्छा, अगर बेटा नकारा भी है ना, उसको वर्कशॉप पे बिठा देना, वो फिर भी माशरे का एक करामत फर्द है, ठीक है। बेटा है, बेशक वो जितना भी नकारा वो सेलमैन कर लेगा, देखिए कुछ ना कुछ तो वो करेगा। ये वजह है कि हमारे माशरे का डाउनफॉल जो है ना वो अनवांटेड बच्चियों की आमद है। फिर क्या है, मैं ये समझे किसी पेशेंट ने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहबा आप क्या समझती हैं कि ये बच्चियां आपको लगता है कि बेटों से बहुत प्यार है। मैंने कहा ये बात नहीं है, एक्चुअली ये बेटों का प्यार नहीं है, बेटियों की मोहब्बत है। ये मैं समझती हूँ, मैं उन बच्चियों के लिए ना कि वो शेर है ना, मैंने देखी है कई फूलों की आंखें पर, कैसे कह दूं कि गुलशन में बाहर आई है। आप कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा स्टेबल है, उन बच्चियों को जाके देखें जो पेरिफेरी की बच्चियां हैं, जिनको अभी हम वक्फे में बात कर रहे थे तो बच्ची ने कहा, मैंने कहा बेटा आपने क्या बनाया, क्या खाया आपने, तो उसने कहा हमने मुर्गी का शोरबा बनाया था। ठीक है, वजह क्या थी कि उसको मुर्गी का शोरबा, उसे नहीं पता कि मेरे घर में मुर्गी बनी है, उसे यही पता है कि शोरबा बना है क्योंकि उसके हिस्से में शोरबा आया। बिल्कुल ठीक है, उस बच्ची के हिस्से में, क्योंकि उसके सबसे पहले उसके बाप को वो पोर्शन अच्छा गया, फिर भाइयों को गया, फिर उसके बाद बेटियों की तो बारी नहीं आती। तो क्यों ना हम, अगर मेडिकल साइंस हमें इजाजत देती है कि आप साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो हम क्यों ना एक कानून के तहत, एक कानून की पाबंदी के तहत लोगों की हेल्प करें। ये नहीं कि हमारे पास 2 माह शादी को हुए हैं तो लोग आगे नहीं, डॉक्टर साहब जी हमें मेरा बेटी नहीं चाहिए, बेटा कर दें। देखिए किस कदर अच्छा कानून है। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जेंडर सिलेक्शन की सर्विसेज दी ही उन लोगों को गई हैं जिन लोगों में पहले 2 बेटियां हैं, सही, जिनकी 2 बेटियां, वो सोचे हमारे पास आने की। ठीक, अच्छा बताइएगा थोड़ा सा इस हवाले से भी कि ऑर्गेनाइज्ड कहाँ से है जी, ठीक है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताएं। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि 2009 में एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने कुछ रिसर्च की पाकिस्तान में, ठीक है, और इसमें पता चला कि पाकिस्तान में ना सिर्फ पॉवर्टी है बल्कि 20% पॉपुलेशन जो गरीब है ना, उनका कोई परेशानी हाल नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हम मतलब इसके अपनी पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो पॉपुलेशन के हवाले से तो इंडिया और चाइना की बहुत ज्यादा आती है, लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि मैं बीइंग अ व्यूअर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ही क्यों हम देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में ये इशू है, फिर पाकिस्तान में अगर आती है ये बात के फीमेल्स बहुत ज्यादा, और ये तो एक कानून कुदरत भी है और कुरान पाक इस चीज की गवाही है कि औरत जो है और फीमेल जो है वो कायनात में बहुत ज्यादा होंगी। ये एक फैक्ट है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट था कि आपने कहा कि भाई इसको चेंज किया जाए? सबसे बड़ा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ में जब मैं समझती हूँ कि आप है ना, मधु बैठी है, मैं हूँ, इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, जब एक इंसान सच्चे दिल से किसी काम के पीछे लगता है ना, तो ये अल्लाह ताला का वादा है कि वो उसका हाथ जरूर पकड़ेगा, ठीक है, और वो पकड़ता है, ऐसी बात नहीं है, हमें महसूस नहीं होता, हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन वो नजर भी आता है हमें कुछ लम्हों में और हमारा हाथ भी पकड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2009 में पेरिफेरी में ये एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के हमने वसातत से एक हॉस्पिटल में टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोला। ठीक, अच्छा, हमारा मकसद क्या था
کہ جتنے لوگوں کو انفرٹیلٹی ہے، بانجھ پانا ہے، جو لوگ بڑے بڑے دیکھیں جی جب تک 5 لاکھ روپیہ جیب میں نہیں ہے ہاں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں کر سکتے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان لوگوں کو ہم ایڈریس کریں اور یقین کریں الحمدللہ کہ اس وقت ہم نے کئی ہزاروں لوگ ہیں جن کو ہم نے ایون فری آف کاسٹ ایکسی بھی کیا ہے۔ زبردست۔ یس، یہ میں اگر آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہوں نا ہاں، ہاں۔ تو آپ اس کو چیک کر Authenticity سے آپ بات کر رہی ہیں۔ Authenticity، ہم نے لوگ پیڈ لوگ بھی ہیں، پارشلی پیڈ بھی ہیں، اور ایون ریسرچ کے اوپر فری آف کاسٹ لوگ بھی ہیں۔ زبردست، ٹھیک ہے، زبردست۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے میں جب ان لوگوں کو دیکھتی تھی اس کے ساتھ ایک ایسا طبقہ بھی آتا تھا کہ اگر ایک عورت آ رہی ہے نا کہ اس کے وہ جی میری بھابھی ہے یا اس کا بچہ نہیں ہے، اچھا میں کہتی تھی تمہارے تو بچے ہیں، تم کیوں سیڈ ہو؟ ہاں ہاں ہاں۔ ایک سیڈنس دوسری عورت کے چہرے پہ میں دیکھتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اسے کہتی تھی، میں آگے لڑ پڑتی تھی، انہیں ڈانٹتی تھی ہاں ہاں۔ کہ جی آپ نے کیا مطلب، یہ کیا بات ہوئی، آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ سیڈ ہیں؟ Sad ہے۔ پھر میں نے جب اس عورت کی کہانی دیکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو بیچاری مجبور ہے اس معاشرے کے ہاتھوں، بالکل ایسا۔ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ اس کو مجبور کرتے ہیں بیٹا پیدا کرنے۔ ایگزیکٹلی ایسے۔ اچھا ہماری سوسائٹی اتنی باؤنڈ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مطلب کسی کی شادی ہوئی ہے اور شادی کو ہوئے 2 ماہ یا 3 ماہ یا 6 ماہ بھی ہوئے ہیں، اگر 6 ماہ ہو گئے یا سپوز آپ کہہ لیں کہ 2 ماہ بعد بھی، اچھا تمہارے گھر میں کوئی بدھی ہو جائے، مطلب میں آنر اگر یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں خدا را کہ قانون قدرت بھی کوئی چیز ہے کہ آپ بار بار مطلب عورت کے بس میں تو نہیں ہے نا، مطلب کوئی چیز ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کو ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا دے۔ اور جب آپ کے گھر میں بیٹیاں ہو جائیں پھر ایشو یہ کریٹ ہو جائے، نن نے کچھ کہہ دیا، ساس نے کچھ کہہ دیا، یا میکے کی طرف سے کوئی ایشو آنا شروع ہو گئے، تو ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یو آر رائٹ۔ یہ بہت زیادہ ایشو، برننگ ایشو ہے ایکچولی۔ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ بہوؤں کو جلا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ایسا اس نے کیا، اس نے تو بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے، اس نے کون سا بیٹا پیدا کرنا ہے، یا اگر بیٹے ہو گئے تو ہمارے گھر میں کوئی بیٹی نہیں، بیٹی والا ایشو کم آتا ہے میرے خیال سے۔ آپ کہنے 100 میں سے کوئی 1% ہوں گے لوگ جو یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، میجورٹی لوگ یہ کہیں گے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ مطلب یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہاں۔ لوگوں کو نالج تو آئے کہ یہ پرابلم بیسیکلی شروع کہاں سے ہوتی ہے، شروع کہاں سے، بالکل کہ ایسے ہی۔ سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے